Good morning, student. Today we will discuss the new topic, renewal of the bill. Actually, before starting the topic, we would like to know what is renewal of the bill. Sometimes DROI feels difficult to pay the payment on the maturity time and he wants to new bill by cancelling the old bill. This is called renewal of the bill. When renewal of the bill is made, then drawer should charge interest from the DROI and DROI will ready to pay it. So this is the renewal of the bill, right? And for the renewal of the bill, basically four things is necessary. First, the cancellation of the old bill is necessary. Second, the DROI may pay the half payment or may request for new bill. Third, interest is charged on the whole payment and on the balance payment if certain amount is paid by the DROI, and fresh bill will be accepted by the DROI. So these 4 points are needed for renewal of the bill, right? So first of all, we will start the entries in the drawer box. Books of drawer. So see here, when the bill is cancelled, first when bill is cancelled, then entry will be DROI account debit to bill receivable, right? So this is the entry when old bill is cancelled. Secondly, when interest is received. Second, when interest is received, the entry will be cash account debit to interest, right? Third entry, when interest is not received. When interest is not received. If interest is not received, then we will debit the DROI account. DROI account debit to interest. So this is the entries. And when renewal of the bill, and fourth entry is renewal of bill. What will be the entry? Bill receivable account debit. Bill receivable account debit to DROI. So these are the entries in the books of drawer when the renewal of the bill has happened, right? Now we will start the entries in DROI books. Books of DROI. Books of DROI. First entry, when bill is cancelled, entry will be first when bill is cancelled. Entry is bill payable account debit to drawer. Second, when interest is paid.
when interest is paid, entry will be interest account debit, to bank or cash, right? Third, when interest is not paid, what will be the entry? Entry is interest account debit, to drawer. Fourth entry, for renewal of bill, entry is drawer account debit, to bills payable, right? So this is the entries, right? These are the entries in the case of renewal of the bill. These entries are in the books of drawer and these entries are in the books of drawing, right? Let me start illustration number 21, right? अब स्टूडेंट रिन्यूअल ऑफ बिल से रिलेटेड हम illustration 21 स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट? अभी स्टूडेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं illustration 21. दिस इज चैप्टर 14. राजा illustration 21 में लिखा हुआ है कि ऑन द 1st January 2018 चंदर ड्रू ए बिल ऑन द ईश्वर फॉर 800 पेएबल 2 months आफ्टर द साइट. ठीक है राजे. तो इसमें जो ड्रॉर है वो चंदर है, तो हमने चंदर की बुक्स बनानी है, बुक्स ऑफ चंदर, ठीक है जी. चंदर ड्रॉर है. तो इस केस में लिखा हुआ है कि चंदर ने एक बिल लिखा ईश्वर के ऊपर 800 का Jan 10 को. तो Jan 10 को हम बिल रिसीव कर रहे हैं. Jan 10 एंट्री हो रही है आपकी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ईश्वर. ईश्वर से आप बिल रिसीव कर रहे हो 800 का. आपने 800 का बिल रिसीव कर लिया ईश्वर से. इसके बाद लिखा हुआ है कि ईश्वर एक्सेप्टेड इट ऑन 10th January. ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी ईश्वर कुड नॉट ऑनर हिज एक्सेप्टेंस. चंदर गॉट इट नोटेड एंड पेड 10 एज नोटिंग चार्जेस. तो जो बिल रिसीव किया गया, ठीक है, वो Jan 10 को किया गया. मेच्योरिटी के टाइम पे यानी कि March 13 को जो ये बिल है तो उसकी पेमेंट ईश्वर कर नहीं पाया. तो ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया है और नोटिंग चार्जेस 10 रुपये पे करना पड़ा. 10 रुपीज़ का. तो आप अरे ड्यू डेट पे जा रहे हो. ड्यू डेट है March 13 को ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया. तो राजा ईश्वर को आपने डेबिट कर देना है. ईश्वर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल और टू कैश. ठीक है राजे. 800 का बिल है और 10 रुपये पे कर दिए. ठीक है जी. 10 रुपीज़ पे कर दिए गए हैं. ठीक है जी. चंदर ने 10 रुपीज़ पे किए. अब इसके बाद लिखा हुआ है कि ही पेड नोटिंग चार्जेस एंड 16 रुपये इंटरेस्ट इन कैश एंड ही रिक्वेस्ट फॉर कैरिड आउट. न्यू बिल वॉज पेड ऑन द ड्यू डेट. तो एक नया बिल लिखा गया. ठीक है जी. तो नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट इसके पैसे जो हैं इसको मिल गए हैं. सो March 13 को
कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू ईश्वर, ईश्वर ने नोटिंग चार्जेस पे कर दिए और इंटरेस्ट पे कर दिया। आपके पास 10 रुपीज़ का नोटिंग चार्जेस है, 16 रुपीज़ का इंटरेस्ट है, 26 रुपीज़ ईश्वर ने आपको पे कर दिए और न्यू बिल लिखने के लिए रिक्वेस्ट की। अब जो न्यू बिल है वो मार्च 13 को लिखा जा रहा है, तो न्यू बिल रिसीव हो गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ईश्वर, तो नया बिल आपके पास आ गया है। जो नया बिल है वो 800 का है, 800 का नया बिल आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद मार्च 16 को इसकी पेमेंट हो गई है, तो एंट्री क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, 800 की पेमेंट जो है उसकी पेमेंट हो गई है, ठीक है जी। बात समझ आ रही है आपको? तो 800 की पेमेंट कर दी गई है। अब राजा पर बात करेंगे, जो दूसरा पार्टनर है आपका वो है आपका ईश्वर। ईश्वर की बुक्स बनाएंगे आप बनाने जा रहे हैं ईश्वर की बुक्स ऑफ ईश्वर। राजी जैन 10 को ईश्वर ने बिल दिया चंद्र को, तो एंट्री होगी चंद्र अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, चंद्र अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, 800 रुपीज़ का बिल आपने चंद्र को दे दिया, ठीक है जी। अब मार्च 13 को क्या हुआ, ये जो बिल है राजी डिसऑनर हो गया, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाना है और चंद्र को क्या कर देना आपने, क्रेडिट। बिल्स पेएबल डेबिट हो जाएगा और चंद्र को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है, ठीक है जी। और नोटिंग चार्जेस भी आपने डेबिट करने हैं, क्योंकि ये किसने पे किए हैं, ये पे किए हैं आपके चंद्र ने, पर जो एक्सपेंसेस तो आपका ही है। 810, तो आपने चंद्र को 810 रुपीज़ देने हैं। अब हुआ क्या कि मार्च 13 को क्या हुआ कि आपने चंद्र को इंटरेस्ट पे कर दिया और साथ में नोटिंग चार्जेस भी पे कर दिए। तो नोटिंग चार्जेस डेबिट चंद्र के नाम, चंद्र को पे करोगे 10 रुपये उसके पे कर दिए नोटिंग चार्जेस के, और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 16 रुपीज़ का इंटरेस्ट, तो चंद्र को आपने नोटिंग चार्जेस भी पे कर दिए, ठीक है जी, और साथ में कैश भी पे कर दिया, ठीक है जी, क्लियर। इसके बाद आपने नया बिल इशू किया, मार्च 13 को नया बिल तैयार किया गया, चंद्र अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, ठीक है जी, 800 का बिल लिखा गया, ठीक है जी। उसके बाद ड्यू डेट पे मार्च 16 को इसकी पेमेंट हो गई है, तो बिल्स पेएबल डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है जी। तो ईश्वर ने ड्यू डेट पे इसकी पेमेंट कर दी। तो आप देख रहे हैं कि पहले चंद्र को बिल दिया गया, ड्यू डेट पे ये बिल डिसऑनर हुआ, ठीक है जी, और नोटिंग चार्जेस का खर्चा पड़ा ईश्वर को, फिर ईश्वर ने नोटिंग चार्जेस इंटरेस्ट किसको दे दिए, आपके चंद्र को,
ईश्वर ने फिर नया बिल लिखा, नया बिल एक्सेप्ट किया और ड्यू डेट पे इसकी पेमेंट कर दी। तो स्टूडेंट ये है रिन्यूअल ऑफ द बिल। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद राजे आपने ये एग्जांपल नंबर 20 है, 21 आपने सेल्फ करनी है, 22 जो है वो आपने सेल्फ करनी है। ठीक है जी, 22 आपने क्या करनी है, सेल्फ करनी है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप टॉपिक नया करेंगे राजी ट्रीटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी का। ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अब स्टूडेंट मेरे पास टॉपिक है इंसॉल्वेंसी का। ठीक है। इंसॉल्वेंसी के टॉपिक में क्या है कि जो ड्रॉई होता है राजे वो अपनी लायबिलिटी को पूरा करने में इनकैपेबल होता है। ठीक है। जब किसी भी ड्रॉई की लायबिलिटीज जो हैं उसकी एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू से ज़्यादा हो जाएं तो उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है। तो फिर ऑफिशियल कोर्ट के द्वारा एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, वो आपकी एसेट्स को बेचता है, जितना अमाउंट आता है उससे फिर वो ड्रॉर को पेमेंट करता है। ठीक है राजे। तो जब कोई बिल इंसॉल्वेंसी के कारण डिसऑनर हो जाए, ठीक है, कुछ भी रिकवर ना हो सके, जब थोड़ा बहुत पार्ट उससे रिकवर हो सके इन फुल सेटलमेंट, ठीक है, उस केस में प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है वो ड्रॉर को दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि इंसॉल्वेंसी के कारण 60 पैसे रुपीज़ में रिसीव हुए, तो उसका मतलब है कि 60% रिसीव हो रहा है उसकी एसेट्स को बेच के। ठीक है। तो आप टॉपिक करने जा रहे हैं इंसॉल्वेंसी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो हमारा टॉपिक है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी तो इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होएगा, इसका मतलब होएगा बिल इज डिसऑनर्ड, बिल इज डिसऑनर्ड ड्यू टू इनकैपेबिलिटी to pay the payment of the bill, then it is called insolvency. It is called insolvency. In this case, liability exceeds the realizable value of the assets. Realizable value of the assets. ठीक है स्टूडेंट। तो ये है आपके पास इंसॉल्वेंसी का टॉपिक कि ड्रॉई ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी लायबिलिटीज़ एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू से ज़्यादा हो गई है। इस केस में कोर्ट के ऑर्डर पे एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा जो कि आपकी एसेट्स को बेचेगा, जितनी भी वैल्यू एसेट को बेच के मिलेगी, ठीक है, उससे फिर ड्रॉर की पेमेंट की जाएगी। ठीक है राजे। तो मैं राजे इसकी ड्रॉर की एंट्रीज आपको करके दिखा रहा हूँ। बुक्स ऑफ ड्रॉर, बुक्स ऑफ ड्रॉर की बुक्स में राजे एंट्री करेंगे। जब राजे कोई बिल डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है जी, व्हेन
बिल इज डिसऑनर्ड। तब राजे आप क्या एंट्री करोगे? तब राजे हमने ड्रॉअर के अकाउंट को डेबिट करना है, ड्रॉई के अकाउंट को, ड्रॉई अकाउंट डेबिट। अगर सिंपल केस है तो राजे BR डेबिट होएगा, बिल रिसीवेबल। अगर आपका एंडोर्स किया हुआ है तो राजे आप नीचे एंडोर्स ही करोगे, ठीक है जी। और अगर आपने बिल डिस्काउंट करवाया हुआ है तो आपको क्रेडिट बैंक करना है। और अगर आपने बिल बैंक में भेजा हुआ है, ठीक है जी, तो बिल फॉर कलेक्शन को क्या करना है आपने? क्रेडिट करना है। बिल फॉर कलेक्शन को क्या करना आपने? क्रेडिट। तो ये है राजी एंट्री बिल डिसऑनरिंग की। इसके बाद जब आपको फाइनल पेमेंट मिलेगी, फाइनल पेमेंट रिसीव्ड, जब फाइनल पेमेंट मिलेगी आपको तब एंट्री क्या करोगे? व्हेन फाइनल पेमेंट इज रिसीव्ड, राजे आपको एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ठीक है राजे। तो ये है एंट्रीज आपकी ड्रॉअर की बुक्स में। और राजे बुक्स ऑफ ड्रॉई की बात करेंगे। बुक्स ऑफ ड्रॉई, तो ड्रॉई की केस में क्या एंट्री होंगी? व्हेन बिल इज डिसऑनर, व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड, जब बिल डिसऑनर होएगा तो राजे आपको बिल्स पेबल डेबिट करना है, बिल्स पेबल डेबिट करना है। और ड्रॉअर को करना है राजे क्रेडिट, ठीक है राजे। फाइनल पेमेंट पेड बाय ड्रॉई, जब ड्रॉई फाइनल पेमेंट करेगा राजे तब एंट्री क्या करोगे? एंट्री में राजे आपको ड्रॉअर को डेबिट करना है, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है। और जितनी पेमेंट आप नहीं दे पा रहे उतने से डेफिशिएंसी अकाउंट को क्या करना आपने? क्रेडिट। डेफिशिएंसी अकाउंट को क्या करना आपने? क्रेडिट, ठीक है राजे। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसॉल्वेंसी को बाय इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तब तक के लिए थैंक यू।